Hello dear students, myself Akanksha and I will teach you biology of your textbook NCERT. The first chapter is life process. Um, I tell you about at last class the process main basic function of process, life and nutritions, type of nutritions and about organism and all these things. And now we start the respiration. Those students who not watch the last class, please go go at the my last video and study about the life process. The next one is respiration. So let's start to study what is the respiration. Respiration is a process in which the breakdown of the food and release the energy is known as respiration. There are some basic type of respiration, that is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. Aerobic respiration is the mean by the respiration is undertake the presence of oxygen is known as aerobic respiration and another one is the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. There are basic difference between breathing and respiration. Breathing is a process in which we exhale and inhale the carbon dioxide and oxygen is known as breathing. Same like respiration, but respiration is a metabolic activity in which the breakdown of food in simple inorganic compound is known as respiration. In plants, it's opposite of the photosynthesis, where photosynthesis is the take place the simple inorganic food to complex inorganic food material, whereas respiration is the breakdown of food in simple inorganic compounds, complex. Okay, there are some basic type of aerobic respiration. When C6H12O6, it means this is a glucose. When glucose is convert or break down its two form of pyruvate, that is two molecule of carbon, two molecule of pyruvate is the lysis of glucose is known as glycolysis. It's occur in mitochondria in the cell, where these pyruvate change into carbon dioxide, water and 38 ATP. ATP means adenosine triphosphate. It is the energy. This release of energy is known as respiration. Another way, there are breakdown of glucose in pyruvate in the absence of oxygen is glycolysis, where this is taken in two steps, that is the one is lactic acid and another one is fermentation. Fermentation is a process in which breakdown of glucose. Look here, fermentation is a process where breakdown of glucose in the absence of oxygen and release carbon dioxide is known as fermentation. Okay, fermentation occurs by yeast. Yeast, Y-E-A-S-T. Yeast is a fungi which perform the fermentation process and make the you can say that cake is also done by fermentation process. And the lactic acid, we tell you about the lactic acid in anaerobic condition, where in the muscles of organism where less of oxygen or absence of oxygen, the glucose is break down into the lactic acid.
जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा चल लेते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब हमारी जो मसल्स में पेन होने लगती है, मतलब दर्द होने लगता है। तो ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या परफॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। ओके, सो वी रिकॉल अगेन, there are two type of respiration. One is aerobic respiration, another one is anaerobic respiration. Aerobic respiration in the presence of oxygen and anaerobic respiration in the absence of oxygen and release the energy. Okay, थोड़ा सा बच गया था फोटोसिंथेसिस में कि इसके टाइप क्या होते हैं। दो टाइप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट वन क्या, जब ये रिएक्शन जब करता है लाइट रिएक्शन, और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है। और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि पहले ही हम आपको बता दिए थे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसे थोड़ा होता है। ये जो होता है कवरिंग इसका होता है क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ढेर सारे, जैसे सिक्के को रख दो आप, एक के ऊपर एक रख दो ना, तो वैसे ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। ओके, और ये जो ऊपर का लेयर होता है इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब थैलेक्वाइड में रिएक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? लाइट रिएक्शन। इन द अदर वे, जब रिएक्शन हमारा स्ट्रोमा में होता है तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट में होता है तो वो क्या कहलाता है? डार्क रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड डार्क रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। ओके, अब देख, ब्रीदिंग के बारे में हमने बता दिया था कि एक्सहेल और इनहेल करना और गैसों का क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। ओके, ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्सहेल जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, उसमें कितना परसेंट छोड़ते हैं? 5.6% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। एक्सहेल मीन्स आउट ऑफ गैस फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, या तो आप कह सकते हो रिलीज ऑफ गैसेस थ्रू नॉस्ट्रल from our body is known as exhale. In the opposite sense, intake of oxygen और intake of कार्बन, मतलब वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इंटेक नहीं करते हैं, फिर भी कुछ परसेंट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं। हम नॉर्मली क्या इंटेक करते हैं? ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। ओके, इंटेक ऑफ गैसेस फ्रॉम द नॉस्ट्रल इज नोन एज इनहेल एंड out the gases from nostril is known as exhale. कार्बन जो होता है एक्सहेल में कितना होता है? 5.6% हम रिलीज़ करते हैं और 0.03% जो होता है वो हम इनटेक करते हैं। फर्मेंटेशन का हमने पहले ही बता दिया था आपको। और अब देखते हैं क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो 3 एटम ऑफ कार्बन के फॉर्म में टूटता है, इसका ग्लाइकोलिसिस होता है। यहाँ पे आपका C6H12O6 है, वो ब्रेक डाउन होगा C3H7, मतलब कि ऐसे ही टूटता है। मतलब यहाँ पे जो 6 कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के फॉर्म में टूटता है, तो ये क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। तो पायरुवेट जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स, इस प्रोडक्ट हमारा क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। ओके, अब देखते हैं कि जब एटीपी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन में, क्या एटीपी रिलीज़ होती है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, तो उसमें क्या क्या रिलीज़ होता है? CO2 रिलीज़ होता है प्लस H2O रिलीज़ होता है। ओके, तो इसको देखिए, इसको अभी इक्वेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस क्या रिलीज़ होता है? ATP रिलीज़ होता है। अंडरस्टैंड? तो अब देखते हैं इसमें इसकी ATP का यूज़ क्या क्या है। ATP का यूज़ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ATP का यूज़ किया जाता है।
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एटीपी का यूज़ होता है। और जो हमारी नर्व इम्पल्स होती हैं, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स कुछ इस तरह के होते हैं। इसका डायग्राम ये होता है, इसका एक्सॉन होता है, ये इसकी बॉडी होती है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ पे ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेंड्राइट्स इसको कहते हैं। ओके, और यहाँ पे इसकी टेल होती है, टेल में यहाँ पे डेंड्राइट्स लगे होते हैं, यही जो एक दूसरे से कंडक्ट करते हैं। इनके इधर सेम यहाँ पे भी एक नर्व सेल होगी, तो ये एक दूसरे से कंडक्ट करते हैं, तो यही नर्व इम्पल्स होती है। ओके, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए एटीपी का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट में क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ और है जो कि मेन मतलब कि जानने के लिए है, नॉलेज के लिए, नॉलेजेबल बात है कि जो एनर्जी होती है एनारोबिक प्रोसेस में, वो रिलीज़ जब होती है तो वो 19 टाइम ग्रेटर होती है, किससे, मतलब ज़्यादा होती है एनारोबिक प्रोसेस में। ओके, जब एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी जो होती है एनारोबिक प्रोसेस से 19 टाइम ज़्यादा रिलीज़ होती है। अब हम प्लांट में देखते हैं कैसे रेस्पायरेशन होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि जो ऊपर की जो सेल होती है, क्यूटिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और फिर इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे एपिडर्मिस सेल होती है, एपिडर्मिस सेल होती है। देन यहाँ पे जो होता है ये मीजोफिल का पार्ट होता है, इसको पूरा मीजोफिल कहते हैं। और ये जो होता है पैलिसाड लेयर, इसको कहते हैं पैलिसाड लेयर। यहीं पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये सब भी लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ओके, तो ये जो स्टोमेटा होता है, यहीं से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और यहीं से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। ओके, फिर इसके बाद अब देखते हैं एक्वेटिक एनिमल में कैसा रेस्पायरेशन होता है। एक्वेटिक एनिमल में जैसे कि फिश जो होते हैं, फिश इन मतलब कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें रेस्पायरेशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होता है। जैसे कि कुछ एनिमल्स में जो रेस्पायरेशन का पार्ट्स होता है वो स्किन होती है, किसी में सरफेस होती है, बॉडी का सरफेस होता है, किसी में गिल्स होता है, और हमारे में क्या होता है, हमारे में हार्ट होता है। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पायरेशन करते हैं। एक्वेटिक एनिमल में कैसा रेस्पायरेशन होता है, डिफ्यूज़न, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब में क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज़ का लोअर कंसंट्रेशन में जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। सेम डिफ्यूज़न क्या होता है, प्लांट्स में होता है, वही डिफ्यूज़न जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसमें भी डिफ्यूज़न होता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे रेस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, थैंक यू एंड लाइक कीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आकांक्षा एंड आई विल टीच यू बायोलॉजी of your textbook NCERT. The first chapter is life process. I tell you about at last class the process, main basic function of process, life and nutritions, type of nutritions, and about organism and all these things. And now we start the respiration. Those students who not watch the last class, please go at the my last video and study about the life process. The next one is respiration. So let's start to study what is the respiration. Respiration is a process in which the breakdown of the food and release the energy is known as respiration.
There are some basic type of respiration, that is aerobic respiration, and another one is anaerobic respiration. Aerobic respiration is the mean by the respiration is undertake the presence of oxygen is known as aerobic respiration, and another one is the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. There are basic difference between breathing and respiration. Breathing is a process in which we exhale and inhale the carbon dioxide and oxygen is known as breathing. Same like respiration, but respiration is a metabolic activity in which the breakdown of food in simple inorganic compound is known as respiration. In plants, it's opposite of the photosynthesis, where photosynthesis is the take place the simple inorganic food to complex inorganic food material, whereas respiration is the breakdown of food in simple inorganic compounds, complex. Okay, there are some basic type of aerobic respiration. When C6H12O6, it means this is a glucose. When glucose is convert or break down its two form of pyruvate, that is two molecule of carbon, two molecule of pyruvate is the lysis of glucose is known as glycolysis. It's occur in mitochondria in the cell, where these pyruvate change into carbon dioxide, water, and 38 ATP. ATP means adenosine triphosphate. It is the energy. This release of energy is known as respiration. Another way, there are breakdown of glucose in pyruvate in the absence of oxygen is glycolysis, where this is taken in two steps, that is the one is lactic acid and another one is fermentation. Fermentation is a process in which breakdown of glucose. Look here, fermentation is a process where breakdown of glucose in the absence of oxygen and release carbon dioxide is known as fermentation. Okay, fermentation occurs by yeast. Yeast, Y-E-A-S-T. Yeast is a fungi which perform the fermentation process and make the you can say that cake is also done by fermentation process. And the lactic acid, we tell you about the lactic acid in anaerobic condition, where in the muscles of organism where less of oxygen or absence of oxygen, the glucose is break down into the lactic acid. जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा चल लेते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब हमारी जो मसल्स में पेन होने लगती है, मतलब दर्द होने लगता है. तो ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या परफॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड. ओके, सो वी रिकॉल अगेन. There are two type of respiration. One is aerobic respiration, another one is anaerobic respiration. Aerobic respiration in the presence of oxygen and anaerobic respiration in the absence of oxygen and release the energy. Okay. थोड़ा सा बच गया था फोटोसिंथेसिस में कि इसके टाइप क्या होते हैं. दो टाइप होते हैं फोटोसिंथेसिस के. फर्स्ट वन क्या, जब ये रिएक्शन जब करता है लाइट रिएक्शन, और एक होता है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन होता है.
अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि पहले ही हम आपको बता दिए थे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसे थोड़ा होता है। ये जो होता है कवरिंग इसका होता है क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ढेर सारे। जैसे सिक्के को रख दो आप, एक के ऊपर एक रख दो ना, तो वैसे ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं? थैलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेकोइड कहते हैं। ओके। और ये जो ऊपर का लेयर होता है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ओके। तो क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब थैलेकोइड में रिएक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? लाइट रिएक्शन। इन द अदर वे जब रिएक्शन हमारा स्ट्रोमा में होता है तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट में होता है तो वो क्या कहलाता है? डार्क रिएक्शन। ओके। लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड डार्क रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। ओके। अब देख, ब्रीदिंग के बारे में हमने बता दिया था कि एक्सहेल और इनहेल करना और गैसों का क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। ओके। ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्सहेल जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, उसमें कितना परसेंट छोड़ते हैं? 5.6% कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। एक्सहेल मीन्स आउट ऑफ गैस फ्रॉम आवर बॉडी। ओके। या तो आप कह सकते हो रिलीज ऑफ गैसेस थ्रू नॉस्ट्रल from our body is known as exhale. In the opposite sense, intake of oxygen और intake of कार्बन, मतलब वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इंटेक नहीं करते हैं, फिर भी कुछ परसेंट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं। हम नॉर्मली क्या इंटेक करते हैं? ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। ओके। इंटेक ऑफ गैसेस फ्रॉम द नॉस्ट्रल इज नोन एज इनहेल एंड out the gases from nostril is known as exhale. कार्बन जो होता है एक्सहेल में कितना होता है? 5.6% हम रिलीज़ करते हैं और 0.03% जो होता है वो हम इनटेक करते हैं। फर्मेंटेशन का हमने पहले ही बता दिया था आपको। और अब देखते हैं क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो 3 एटम ऑफ कार्बन के फॉर्म में टूटता है, इसका ग्लाइकोलिसिस होता है। यहाँ पे आपका C6H12O6 है, वो ब्रेक डाउन होगा C3H7, मतलब कि ऐसे ही टूटता है। मतलब यहाँ पे जो 6 कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के फॉर्म में टूटता है, तो ये क्या बनाता है? पायरूवेट बनाता है। तो पायरूवेट जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स, इस प्रोडक्ट हमारा क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। ओके। अब देखते हैं कि जब एटीपी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन में, क्या एटीपी रिलीज़ होती है ना, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, तो उसमें क्या क्या रिलीज़ होता है? CO2 रिलीज़ होता है प्लस H2O रिलीज़ होता है। ओके। तो इसको देखिए, इसको अभी इक्वेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। प्लस क्या रिलीज़ होता है? ATP रिलीज़ होता है। अंडरस्टैंड? तो अब देखते हैं इसमें इसकी ATP का यूज़ क्या क्या है। ATP का यूज़ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ATP का यूज़ किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ATP का यूज़ होता है। और जो हमारी नर्व इम्पल्स होती हैं, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स कुछ इस तरह के होते हैं। इसका डायग्राम ये होता है, इसका एक्सॉन होता है, ये इसकी बॉडी होती है। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और ये क्या होता है? यहाँ पे जो होता है साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पे ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेंड्राइट्स इसको कहते हैं। ओके। और यहाँ पे इसकी टेल होती है, टेल में यहाँ पे डेंड्राइट्स लगे होते हैं, यही जो एक दूसरे से कंडक्ट करते हैं। इनके इधर सेम यहाँ पे भी एक नर्व सेल होगी, तो ये एक दूसरे से कंडक्ट करते हैं, तो यही नर्व इम्पल्स होती है। ओके। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए ATP का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट में क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ और है जो कि मेन मतलब कि जानने के लिए है, नॉलेज के लिए, नॉलेजेबल बात है
कि जो एनर्जी होती है एनारोबिक प्रोसेस में वो रिलीज़ जब होती है तो 19 टाइम ग्रेटर होती है, किससे, मतलब ज़्यादा होती है एनारोबिक प्रोसेस में। ओके, जब एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी जो होती है एनारोबिक प्रोसेस से 19 टाइम ज़्यादा रिलीज़ होती है। अब हम प्लांट में देखते हैं कैसे रेस्पायरेशन होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि जो ऊपर की जो सेल होती है क्यूटिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और फिर इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे एपिडर्मिस सेल होती है, एपिडर्मिस सेल होती है। देन यहाँ पे जो होता है ये मेसोफिल का पार्ट होता है, इसको पूरा मेसोफिल कहते हैं। और ये जो होता है पैलिसाड लेयर इसको कहते हैं, पैलिसाड लेयर। यहीं पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये सब भी लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ओके, तो ये जो स्टोमेटा होता है यहीं से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और यहीं से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। ओके, फिर इसके बाद अब देखते हैं एक्वेटिक एनिमल में कैसा रेस्पायरेशन होता है। एक्वेटिक एनिमल में जैसे कि फिश जो होते हैं, फिश इन मतलब कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें रेस्पायरेशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होता है। जैसे कि कुछ एनिमल्स में जो रेस्पायरेशन का पार्ट्स होता है वो स्किन होती है, किसी में सरफेस होती है, बॉडी का सरफेस होता है, किसी में गिल्स होता है और हमारे में क्या होता है, हमारे में हार्ट होता है। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पायरेशन करते हैं। एक्वेटिक एनिमल में कैसा रेस्पायरेशन होता है, डिफ्यूज़न, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब में क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज़ का लोअर कंसंट्रेशन में जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। सेम डिफ्यूज़न क्या होता है, प्लांट्स में होता है, वही डिफ्यूज़न जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। और जो होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसमें भी डिफ्यूज़न होता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे रेस्पायरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, थैंक यू एंड लाइक कीजिएगा।